all? कैसे हैं आप सब? What's up, guys? Hello, my study fighters. How are you all? So, warm welcome to this Unacademy channel, bacha. My name is Seema Priya. I'm your science educator. So, let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my BEd and also qualified CTET. So guys, I have already started this nutrition in animal chapter. So today I have to finish it. So आज आप सब के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करने वाली हूँ. So सारे टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं. So उसके लिए आप सबको यहाँ पे बने रहना होगा. सबसे पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है. Just do it now. Okay, we talk about the features, guys. Here you are getting unlimited access for all the courses. Top educators are here to take your classes. Okay, you can see here so many benefits are here. If we talk about the benefits, so simply you can say कि आपका Unacademy जो है best learning platform इसलिए कहा गया है. Live test series, study material, answer writing sessions, mentorship and guidance. So many benefits are here. If we talk about iconic subscription, guys, here you are getting live classes for all the subjects daily. Weekly quizzes होते हैं, doubt solving live classes, practice questions, test series are here. Okay, and other than that, guys, you can see here creative corner is also here. In iconic subscription, whatever you are getting in plus subscription, it is included here. And other than that, बच्चा यहाँ पे आपको personal mentor मिल रहा है. Your personal mentor, your parents can also connect here. They can also get your feedback, study planner, live doubt solution भी होता है. So आपके बहुत सारे benefits हैं यहाँ. Creative corner means what? Beyond your school syllabus, you can learn about Indian history through ages, financial literacy, robotics area. In entertainers corner, guys, magic tricks, filmmaking, music. Orators corner में आपका debating, public speaking, effective communication. Book lovers के लिए भी आपका एक कॉर्नर है. So definitely you should try it. Guys, these are very useful for all of you, these two T20 test series, because here you have to attempt 20 questions in 20 minutes. So definitely आपके लिए बहुत beneficial है. You can use my code. This is my code. बच्चा आप मेरा कोड यूज कर सकते हो अनलॉक करने के लिए. If we talk about practice section, so here you get so many subjects. So definitely आपको ये सारे subjects का practice करना चाहिए Unacademy ऐप पे आके. स्पेशल क्लासेस भी होती है आपको पता है. योर कोड इज SPSEEMA. टू यूज दिस कोड. दिस इज माय कोड. सो बच्चा आप सबके लिए ये कोड है. सो यूज इट एंड कम एंड जॉइन माय सेशन एवरी डे एट 10 AM. ओनली फॉर दिस वीक देयर इज नो एनी क्लास. सो मंडे को 15th को डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका स्पेशल क्लास का, वो आपका 15th को होगा. इज दिस क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ओके. नाउ गाइज ऑनगोइंग बैचेस भी चल रहे हैं 6, 7, 8 के. सो आपको वो भी ट्राई करना चाहिए. Unacademy लर्निंग ऐप पे आप लोगों को जल्दी से आके जुड़ना चाहिए. टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है यहाँ पे. आप जल्दी से इसमें आके, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, आप जस्ट जल्दी से आके ज्वाइन करना है आपको. बिकॉज हेयर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस गाइज. टॉप एजुकेटर्स आर देयर टू टेक योर क्लासेस. आपकी क्लासेस टू टेक योर क्लासेस. हु आर देयर? टॉप एजुकेटर्स. वी टॉक अबाउट comprehensive syllabus, guys. In science there are 29 courses, 2 upcoming. In maths there are 24 courses, 8 upcoming. In English there are 18 courses, 2 upcoming. In social science there are 17 courses, 1 upcoming. And in Hindi there are 4 courses. YouTube पे क्लासेस गाइज आप सबकी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होती है 7 PM. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट योर Unacademy 6 to 8, दिस इज योर न्यू चैनल. ये आपका न्यू चैनल है. ठीक है. तो इस न्यू चैनल पे, आपकी इस न्यू चैनल पे, ठीक है, आपकी जो क्लास होती है वो होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 PM. सो प्लीज कम एंड ज्वाइन दीज सेशंस आल्सो बाय गाइस. ये भी बहुत यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक बाय 6 to 8 का मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा दूंगी. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे. सो काफी बेनिफिशियल है ये क्लासेस आपकी. ठीक है. क्योंकि जिस चैनल पे मैं अभी आप प्रेजेंट हो, इस चैनल पे सिर्फ आपका सिलेबस से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी. बट इस चैनल पे आपको सिलेबस के अलावा भी अलग अलग चीजें भी पढ़ाई जाएंगी. Unacademy 6 to 8 जो नया चैनल है बच्चा, उसका जो लिंक है, दिस इज योर लिंक. जस्ट यूज दिस लिंक. कम एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आपको शेयर, सब्सक्राइब करना है ताकि हम इसको भी बाकी चैनल की तरह ही इसको भी उस लेवल पे लेके जा सकें.
नाउ स्पेशल क्लासेस के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओनली फॉर दिस week there is no any class. Don't forget to use my code. My code is SEEMA10. You will you can use my code and you have to use my code, guys. You will get 10% extra discount. Yeah, if you will if you want, if you will really think कि अगर आप ये सोचोगे फ्यूचर में कि नहीं हम ले लेंगे, if you will think in अप्रैल में, so it's not good बच्चा, आपको अभी से ही सोचना चाहिए, ठीक है, कि मैम का कोड यूज करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले, देन ओनली आई कैन कंटिन्यू हियर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन बच्चा. इट्स नॉट अबाउट द प्रीमियर एंड लाइव सेशन. डेफिनेटली प्रीमियर में आपकी क्विजेस नहीं होंगे, मेंटी क्विज नहीं होगा, बट गाइज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रीमियर, जो भी बच्चा प्रीमियर अटेंड करेगा, आई विल चेक इट इन द चैट बॉक्स ड्यूरिंग द क्लास बच्चा, मैं उनको डेफिनेटली दे विल गेट सर्टिफिकेट एंड मेडल्स बच्चा, उनको जरूर मेरी तरफ से मिलेगा मेडल्स एंड सर्टिफिकेट. सो इफ यू वांट मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स देन यू हैव टू अटेंड माय दिस प्रीमियर सेशन आल्सो. नाउ लुक एट हियर गाइस, और डेफिनेटली अब आपकी क्या है, मेंटी क्विज तो हर दिन होता ही होता है, नेक्स्ट वीक से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. नाउ गाइस एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बता चुका है, ठीक है. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड फॉर एनर्जी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. सो एनिमल न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड रीडिंग. सो दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दे ईट. एक्चुअली में वो खाना, वो कहाँ से एनर्जी हमें मिलता है, जो खाना हम खाते हैं, फ्रॉम दैट फूड वी गेट एनर्जी. उसका डाइजेस्ट होना और एसिमिलेट होना, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स में, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स गाइस, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है. सो ये सारा पूरा आपका माउथ से लेके एनएस तक का पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, ठीक है. दिस कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, यू कैन सी हियर, ठीक है. सो दिस ट्रैक्ट यहाँ से लेके आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, जिस एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स मिलके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. सो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, ये सब आता है. और इसके साथ साथ एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, माउथ. इसके अलावा गाइस अदर देन दैट सिलिवरी ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स है. सो जब ये ग्लैंड्स और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक मिलता है तो वो मिलके फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करता है. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे. माउथ एंड बक्कल कैविटी की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इंजेक्शन का. सबसे पहले हमें खाने को माउथ में लेना है. इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. फिर क्या होता है, जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड है गाइस, जो हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, वो सलाइवा सीक्रेट करता है. सलाइवा जो है वो हमारे खाने के साथ मिक्स होता है और वो स्टार्च पे, एक्चुअली में ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि सलाइवा जो है वो किसको डाइजेस्ट करता है. तो सलाइवा जो है वो आपको डाइजेस्ट करता है स्टार्च को. इसको लर्न कर लो, ठीक है. यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है. और फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ गाइस इफ वी टॉक अबाउट इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या, इंजेक्शन रिफर्स टू द इनटेक ऑफ फूड, खाने को बॉडी में लेना. इंजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ. इंजेक्शन जो है वो माउथ के थ्रू होता है. आपने खाने को माउथ में लिया, दैट इज योर इंजेक्शन. डाइजेशन क्या है, अब वो खाना जो है आपकी बॉडी में जाएगा, सबसे पहले वो माउथ में ही आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है. फिर वो उसे ऑसोफेगस, जो आपका एसोफेगस जो है, एसोफेगस उस फूड को आपको स्टमक तक पहुंचाता है. स्टमक में गाइस, आपका स्टमक में फिर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू दिस. HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका म्यूकस. तो उसमें जो गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक जूस है, वो उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और फिर स्टमक जो है उसको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता होगा, मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है. आपका लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है और खुद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज करता है. इन सब की हेल्प से जो आपका फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब आपका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. इज दिस क्लियर? सो डाइजेशन में आपका टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब आपने दांत से चबा रहे हो तो वो भी ना कहीं आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपको डाइजेशन के लिए उसे तैयार कर रहा है, ठीक है. सो यू कैन सी यार, सबसे पहले आपका माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ,
माउथ से फिर वो आया स्टमक में, ठीक है, स्टमक में आया, ठीक है, और स्टमक ने फिर उसको किसको पास कर दिया, उसने फिर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। इज दिस क्लियर? अब जो डाइजेशन फूड है उसका पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो गया तो उसकी वॉल्स जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, वो उसने उसे खाने को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसे ब्लड को दे दिया, उसने ब्लड ने पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड की। इज दिस क्लियर? सो मेन प्रोसेस जो है इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन है। आपने सबसे पहले खाना खाया, फिर वो पूरा डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एंड देन फिर वो जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल गया। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन अब क्या है, आपके एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो फूड हमारा है, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपको ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट इज, लास्ट इज योर इजेशन। इजेशन क्या है? इजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज योर इजेशन, ठीक है। अब आपका जो सॉलिड वेस्ट है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो आपका फिर आपके एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इज दिस क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, ऑन वेनेसडे को मैंने आपको पढ़ा दिया था, लास्ट क्लास में आपको बता दिया था 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, क्या सीक्रेट, जूस सीक्रेट करता है, ऑल द थिंग्स आई हैव डन। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया ताकि एक बार आप इसे देख लो वापस से। कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का। मैंने ये सब आपको चार्ट भी प्रिपेयर करके बता दिया था। इन गाइस, इन लास्ट सेशन आई हैव ड्रॉन 2 डिफरेंट चार्ट्स, सो यू हैव टू लर्न दोस चार्ट्स गाइस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इफ यू वाज नॉट देयर इन दैट सेशन, प्लीज गो एंड वॉच इट, ठीक है। जाके उस सेशन को देखो, वेडनेसडे के सेशन को, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितना यूजफुल है, ठीक है। उसके जो वॉल्स होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको ग्लैंड के बारे में भी बता दिया था कि लिवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर रहता है। यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी taught all these things. Yesterday means day before yesterday बच्चा। It breaks the fat molecules into tiny droplets, पूरा वो प्रॉपर तरीके से सिंपलर फॉर्म में उसे चेंज कर देता है। जो आपका पेनक्रियाज है वो लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो आपका स्टमक के जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट रहता है। वो आपका फैट जो है वो आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, ठीक है। ये जो एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि सिंपलर फॉर्म में चेंज होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है बच्चा, वो भी हमारा प्रोटीन और जितने भी आपका कार्बोहाइड्रेट इन सबको डाइजेस्ट करता है। अब क्या है, जो खाना जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और एब्जॉर्ब, इसके जो वॉल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। एंड देन द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के चारों तरफ वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स है वो उस सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके लेके, ठीक है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है। और जो आपका गाइस यहाँ पे तो आपको शायद अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, बट इसकी जो इनर देखो हल्का हल्का नजर आ रहा है, जो इसके इनर पार्ट होता है ना, उसमें ना फिंगर लाइक ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्शन होता है। इसी प्रोजेक्शन को ना हम विली कहते हैं, ठीक है। विली जो है आउटग्रोथ होता है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन जो है, विली का मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और उसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। याद रखना गाइस प्लीज, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, यू हैव टू राइट दिस, दीज आर विलीज बच्चा, ये आपके विली हैं, ठीक है। सो विली का फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके साथ साथ आपका सरफेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी करवाना होता है, ठीक है। विली पॉजेस अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, जो विली है वो एक पूरा नेटवर्क से बना होता है ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, ठीक है। विली के चारों तरफ ब्लड वेसल होता है, और वो ब्लड वेसल क्या करता है, विली से जितना भी एब्जॉर्ब फूड है, मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है,
वो उसे ले लेता है और पूरे बॉडी में फिर उसको सर्कुलेट कर देता है। इज दिस क्लियर? These blood vessels absorb the digested food. अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में और उसे फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जहां पे भी, ठीक है, जहां पे भी रिपेयर की जरूरत है वहां रिपेयर होता है, जहां पे भी एनर्जी की जरूरत है वहां एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज अब क्या है, जब बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस, बच्चा रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से जब आप सांस लेते हो, व्हेन वी ब्रीथ, व्हेन वी ब्रीथ, सो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो जाके वो जो डाइजेस्टेड फूड है तो पूरे बॉडी में सर्कुलेटेड है, वो सेल्स में स्टोर्ड रहता है, तो वहां जाके वो ऑक्सीजन ना उस जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसे ग्लूकोज में चेंज करता है, ब्रेक डाउन करता है उस ग्लूकोज को, क्योंकि जो स्टोर्ड फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, तो उसको ब्रेक डाउन करता है, उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। और एट द सेम टाइम आपके एनर्जी के साथ, ये आपको पहले भी बताया हुआ, एनर्जी के साथ CO2 और वाटर, दीज आर द वेस्ट, ये आपका वेस्ट है, तो वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकलता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, किसे, ग्लूकोज जब आपका ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उससे हमारी बॉडी में एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है, एंड एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होता है, दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट। ये आपका रियल पिक्चर है, यू कैन सी हियर यहाँ पे। ठीक है, आपका ये स्टमक है, स्टमक से आपका माउथ से स्टमक में आता है और स्टमक से सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फर्दर डाइजेशन के लिए प्रोसेस में जाता है, और डाइजेशन के बाद जो इसके वॉल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो जो डाइजेस्टेड फूड है, और उसके चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स है वो उसे ले लेते हैं। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? एसिमिलेशन समझ आ गया है? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो एसिमिलेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट है आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो है वो आपका सेल्स के कंपोनेंट बनाने में, ये भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका सेल्स के कंपोनेंट को बनाने के लिए कौन, मतलब कौन इन्वॉल्व होता है, सो यू हैव टू राइट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट ऑफ सेल बनाता है, ये कैसे बनता है, फैट से, फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है, वो आपका सेल के कंपोनेंट्स फॉर्म करता है। ठीक है, और जो आपका फॉर्म फैट एंड स्टोर्ड इन द, ये आपका रिजर्व फूड की तरह, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो ये जो फैट है स्टोर्ड भी रहता है आपकी बॉडी में। ठीक है, जबकि एमिनो एसिड कैसे बनता है, प्रोटीन से। एमिनो एसिड किसको तोड़ के बनता है, किसके ब्रेकडाउन से बनता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन को जब तोड़ते हो, ब्रेकडाउन करते हो, उससे एमिनो एसिड बनता है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हो तब। तो एमिनो एसिड जो है वो रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करता है, याद रख लेना, इसे लर्न कर लो। ठीक है, जस्ट लर्न इट। ठीक है, कि आपका फैटी एसिड जो है एंड ग्लिसरॉल जो क्या काम करता है, जस्ट लर्न इट। ठीक है, ये आपका जो है बिल्ड कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल की कंपोनेंट को करता है, और ये जो प्रोटीन है दैट इज योर अमीनो एसिड, ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ये फैट फॉर्म कर रहा है, कई बार आप जब खाना एक एक दिन में या कुछ कुछ आवर्स खाना नहीं खाते हो, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो फैट है वही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वही फैट आपको जो स्टोर्ड फैट है, जो जमा हुआ फैट है, चर्बी है, वही फिर आपको आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर, छोटा होता है। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड, जो आपका अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जब गया तो उसमें जो भी आपका सॉल्ट और वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका, गाइस जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका जो सॉल्ट और वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इज दिस क्लियर? एब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्ट और वाटर को, और फिर उसके बाद जो बाकी वेस्ट को है उसको फिर रेक्टम में यहां लेके आ जाता है, ये आपका रेक्टम है। जो लार्ज, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन,
तो लार्ज इंटेस्टाइन ने सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद फिर उसको रेक्टम में ही आपका जो वेस्ट होता है वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है वो यही स्टोर रहता है और फिर एनएस के थ्रू वो टाइम टू टाइम आपके बॉडी से रिलीज होता रहता है। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पे? सो जो भी वेस्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस जहां पे आपका वेस्ट जो है वो, दिस इज योर एनएस, तो इस एनएस पार्ट से वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन कहते हैं उसे। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बच्चा डायरिया। इट इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट वॉटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। आप बार बार आपने देखा होगा कि आपको पॉटी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वॉटरी होती है। रीजन इसका, ये एक डिजीज है विच इज कॉल्ड इन्फेक्शन से, फूड पॉइजनिंग से या इंडाइजेशन से होता है। इट इज यूजुअली अकर इन चिल्ड्रन मे बी फैटेड। कई बार ज्यादातर बच्चे जो है वो जंक फूड खा ले या इन्फेक्टेड और जो भी स्पॉइल्ड फूड है उसको खा ले, उससे बेसिकली ये चीज होती है। इन दिस कंडीशन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। सॉल्ट और वाटर का प्रॉपर इस तरीके से वाटरी स्टूल के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज योर डायरिया। डायरिया के आपको दिए हुए सैनिटेशन, साफ सफाई, कॉजेज डर्टी, क्राउडिंग, डर्टी हैंड्स। अगर आपकी ये गंदगी अगर आपने सारी चीजें नहीं अगर आपने की है तो ये डेफिनेटली इसका कारण बनता है, ठीक है। दवाइयां हो गई, कई बार न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल, वायरसेस, ये सब कहीं ना कहीं। सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, पेन हो गया, वॉमिट होना, फीवर भी आना, ठीक है। आपका बेसिकली ये सारे जो है आपके सिम्टम्स है, ठीक है। वाटरी स्टूल, ये सब जो है आपके सिम्टम है डायरिया के। सो दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन एंड इट मे बी फैटल। कई बार ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि आपका बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर पानी लगातार निकलता रहेगा बच्चा, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। उस डिहाइड्रेशन को हमें प्रिवेंट करना है। कैसे? जो भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है जिसको ये हो रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा पानी नमक का घोल पिलाते रहो, ठीक है। हर थोड़ी थोड़ी देर में उसके बॉडी में पानी का जो अमाउंट है, उसको लिक्विड का अमाउंट जो है उसे मेंटेन रखना है, अदरवाइज दैट पर्सन विल डाई ऑल्सो, ठीक है। इन दैट केस आप नमक आपको चीनी का पानी घोल भी पिला सकते हो, उसके साथ साथ ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आप सबने देखा होगा, ये भी पिलाना बहुत जरूरी है, इससे वो जल्दी रिकवर करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया, ठीक है। ओआरएस को अगर रेगुलर पिलाया जाए, इज दिस क्लियर? और उसके साथ साथ मेडिसिन खाया जाए। सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? अगर आपको डायरिया से अगर बचाव करना है, अगर बचना है, ठीक है, ना हो तो उसके क्या क्या आपको स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, दैट यू हैव अंडरस्टूड? अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस, योर नेक्स्ट टॉपिक इज रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स बच्चा, रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स को कहा जाता है, जो कि आपका बेसिकली ग्रास और ये सब खाते हैं, जिनके बॉडी, जिनका स्टमक जो होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब उनकी बनावट बॉडी की अलग होती है, ठीक है। इनका अगर हम डेंटिशन की बात करें तो यहाँ पे इंसीजर जो है वो अपर जॉ में नहीं होते हैं, ठीक है। कनाइज जो है वो दोनों ही जॉ में एब्सेंट होते हैं। मोलर्स जो है इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ताकि वो कर्ड मतलब जो वो खाना खाते हैं दैट इज योर ग्रास, ठीक है। ग्रास हो गया, जो झाड़ियां हो गई, ये सब जो भी वो खाते हैं सब उनका कर्ड होता है, खाना, उनका फूड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रूमिनेशन। तो रूमिनेशन क्या है बच्चा? रूमिनेंट स्वेलो द फूड। रूमिनेंट क्यों कहा जाता है इनको? इनको रूमिनेंट्स के नाम से क्यों पुकारा जाता है? लुक एट हियर, क्या कर रहे हैं? दे स्वेलो द फूड विदाउट च्यूइंग। वो सबसे पहला क्या करते हैं? वो खाने को निगल जाते हैं, एंड आफ्टर फीडिंग, खाने को खाने के बाद दे ब्रिंग बैक द फूड फ्रॉम स्टमक, ठीक है। वो खाने को वापस जब अब वो कहीं रेस्ट कर रहे होते हैं, वो बैठ के कहीं पे भी उस खाने को वापस अपने माउथ में लाके और फिर उसको च्वी अगेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए रूमिनेशन प्रोसेस को सेकंड च्यूइंग प्रोसेस के नाम से भी बुलाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन? बिकॉज ये, और इनको रूमिनेंट्स के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि ये जो है ऐसे एनिमल्स हैं जो खाने को निगल के उनके स्टमक में चला जाता है वो खाना, और फिर वो वापस उस खाने को वापस माउथ में लाके उसे जुगाली करते हैं,
वापस चबाते हैं और फिर उनका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो वापस होता है। इज दिस क्लियर? ये जो है ये रुमिनेंट्स के बॉडी पार्ट्स हैं गाइस, यू कैन सी एसोफेगस हो गया, एबोमेसम हो गया, रूमेन हो गया, रेटिकुलम, ओमेसम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में है, इनमें भी जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में ही होता है। लुक एट हियर। सो आपको समझ आ गया। सबसे पहले गाइस रूमिनेंट स्टमक जो होता है बेसिकली इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, यू कैन सी हियर रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ठीक है, और ह्यूमन जो है बच्चा वो लार्जेस्ट आपका पार्ट होता है। वैसे तो 4 पार्ट को मिलके बना है। दिस इज फर्स्ट, ठीक है, ह्यूमन। ह्यूमन के बाद आपका आता है रेटिकुलम, देन ओमेसम एंड देन एबोमेसम। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जाता है, एबोमेसम के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप रीड कर लेना। मैं सारे स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है गाइस, जो इसका जैसे कि ये जो है इसका जो माउथ है, ठीक है, ये माउथ से खाने को ला के र्यूमन के को दे देता है। ठीक है, र्यूमन इस पार्ट में आ जाता है खाना। ठीक है, स्टोर रहता है यहाँ पे, लार्जेस्ट पार्ट है र्यूमन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। यहां से र्यूमन से वो खाना जो है वो जब बैठता है तो उस खाने को र्यूमन जो है वो रेटिकुलम को देता है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है। तो प्रोसेस क्या है, द ग्रास ईटिंग एनिमल स्वेलो द फूड क्विकली, वो जल्दी से उसको निकल जाता है और उसे स्टोर कर देता है र्यूमन में। र्यूमन जो है बच्चा, र्यूमन ऑल्सो इनहेबिट सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो र्यूमन है इसके अंदर इस र्यूमन के अंदर, ठीक है, डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सेलुलोज को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेलुलोज को पूरी तरीके से मतलब काफी हद तक डाइजेस्ट करते हैं यही बैक्टीरिया। लेकिन अभी जो ह्यूमन में प्रेजेंट है बैक्टीरियाज, उसने उस खाने को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, ह्यूमन में खाना जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद वो रेटिकुलम में गया, रेटिकुलम में भी जूसेस रिलीज हुए, उसने भी उस खाने को पार्शियली डाइजेस्ट करके वापस जब वो बैठेगा तो वो उसके माउथ में जाएगा खाना, और फिर वो उसको क्या करेगा, वो उसको जुगाली करेगा, चबाएगा, वहां पे फिर वो डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद वो थर्ड वापस स्टमक में आता है, स्टमक में ओमेसम में आता है। ओमेसम में भी फिर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, वहां पे भी वो डाइजेस्ट होता है, एंड देन फिर एबोमेसम में जाता है। इज दिस क्लियर? सो लुक इट हियर। एंड गाइस यहाँ पे जो आपका ये जो बैक्टीरिया है, जो आपका बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया और रूमिनेंट्स के बीच में, ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया हुआ है। आई हैव टोल्ड यू इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाना। रूमिनेंट्स क्या करता है, जब वो ग्रास खाता है तो वो खाना जब उसके स्टमक में जाता है तो उन बैक्टीरिया को खाना मिल गया। ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस सेलुलोज को, जो उस ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट है, उसको वो डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करने पे रूमिनेंट्स को हेल्प मिल गई कि उसका खाना डाइजेस्ट हो गया। तो एक तरीके से एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो याद रखना, अगर कभी भी कोई भी पूछे कि क्या रूमिनेंट्स के केस में क्या कोई म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, यू हैव टू से यस विद बैक्टीरियाज। ठीक है, सो डाइजेशन इन रूमिनेंट्स जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सिम्बायोसिस का। रूमिनेंट्स और किसके बीच में, बैक्टीरिया के बीच में। याद रखना, रूमिनेंट्स और किसके बीच में, बैक्टीरिया के बीच में। इन दोनों के बीच में आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द स्टमक और रूमिनेंट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बेसिकली, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। इन टर्न ऑब्टेन शेल्टर एंड नरिशमेंट, और उसके साथ साथ उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो र्यूमन जो है वो आपका, द फूड इज टेकन इनटू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टमक में आता है, दैट इज योर रेटिकुलम। तो सबसे पहले र्यूमन में, र्यूमन के बाद ये वाला जो पार्ट है रेटिकुलम, खाना यहां से र्यूमन से रेटिकुलम में आता है। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। एंड इसके बाद फिर आपका ये वाला जो है, ये दिस इज योर फिफ्थ। ठीक है,
सो आपका डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं रेटिकुलम को, जो उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। अब वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कर्ड। वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना आधा पेट में डाइजेस्ट हो चुका है बच्चा, वो कर्ड होता है। वाइल रेस्टिंग, जब वो रेस्ट करता है, काव जो है उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वापस माउथ में लेके और फिर उसका फर्दर प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करता है। इज दिस क्लियर? खाना सबसे पहले जो रूमिनेंट्स होते हैं वो खाने को निगल के र्यूमन में स्टोर करते हैं। र्यूमन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, जो उस खाने को पार्शियली डाइजेस्ट करके रेटिकुलम को दे देते हैं। रेटिकुलम में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होता है, जो उसको और ज्यादा डाइजेस्ट कर देता है, और थोड़ा सा डाइजेस्ट करके, और वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम कर्ड कहते हैं। वो कर्ड जो है वो रेस्ट के टाइम पे उसे वो अपने माउथ में वापस लेके आता है और फिर उसको चबाता है, और वो फर्दर फिर वापस डाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है, और फिर वो उसके बाद ओमेसम में जाता है फर्दर डाइजेशन के लिए। ओमेसम से फिर वो ओमेसम से फिर एबोमेसम में जाता है, ठीक है, जहां वहां पे भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद वहां से वो और लास्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसी को यहाँ पे कैकम देख रहे हो गया, दिस इज योर कैकम। कैकम जो है वही बच्चा, वहीं पे आपका बेसिकली कैकम जो है वो वही हेल्प करता है आपका सेलुलोज के डाइजेशन में। यहीं पे वो बैक्टीरिया जो है वो यहीं प्रेजेंट होते हैं, और कैकम में ही वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जो कि खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है इंटेस्टाइन में, याद रखना। इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पे भी, इनके केस में भी, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे भी वही चीज होती है। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? कैकम समझ आ गया? वो पार्ट होता है, ये बैग लाइक थैले जैसा होता है, ठीक है, जिसमें वो बैक्टीरिया जो है वो उस खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों का सेलुलोज जो है वो ह्यूमन बीइंग में आपका बिल्कुल नहीं, हम सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में वो जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। हम कभी भी हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, इसलिए हम कभी भी ग्रास नहीं खा सकते। द हर्बीवोर एनिमल जैसे कि काउ, बेफलो, यू कैन सी, ये सब जो है ये ग्रास खाते हैं, ये तुरंत निकल जाते हैं, उसे र्यूमन में जाके उसे स्टोर करते हैं, देन उसके बाद वहां से आपका, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो ये सारे कुछ एनिमल्स है, यू कैन सी हियर, ये सब आपके एनिमल्स का जो आपका स्टमक होता है वो इसी तरीके से होता है हर्बीवोर्स का, ठीक है। सो हर्बीवोर्स जो है वो बेसिकली ऐसे ही जुगाली करते हैं, ठीक है। जब वो रेस्ट पे होते हैं तो वो अपने खाने का स्टमक में से खाने को वापस माउथ में लाते हैं, और माउथ में फिर उसे लाके जो फूड है, ठीक है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जिसको हम कर्ड भी कहते हैं, कर्ड जो है उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहते हैं, उसको माउथ में लाके फिर उसको खाता है। दिस कर्ड इज ब्रिंग बैक, वही वही सारी चीजें प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वही खाना उसे खाता है, उसे निकल जाता है खा के, ठीक है। देखो किस तरीके से निकल रहा है तुरंत, वो खाना कहाँ गया, सीधे स्टमक में गया, लुक एट हियर, स्टमक में जाने के बाद देखो जो भी है पूरा प्रोसेस हुआ डाइजेशन, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने जो वेस्ट है वही लार्ज इंटेस्टाइन ने उसको फिर फर्दर उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? कोई डाउट यहां तक? तो सबसे पहले खाना ह्यूमन में आया फर्स्ट में, फिर आपका रेटिकुलम में गया, ठीक है, वहां पे जूसेस रिलीज हुए, उसने डाइजेस्ट किया, सेमी डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कर्ड कहते हैं। फिर उसने कर्ड, जो कर्ड है वो डाइजेस्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसको वापस माउथ में लाके उसको फर्दर डाइजेस्ट किया, एंड देन वहां से वो खाना जो है ओमेसम में जाएगा, और वहां फिर जूसेस रिलीज होंगे, फिर वहां से भी फिर एबोमेसम में जाएगा, वहां भी जूसेस रिलीज होंगे, एंड एबोमेसम से वो खाना जो है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, यहीं पे उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, अगर कोई भी डाउट होगा गाइस प्लीज आस्क मी, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, और मुझसे फिर जिस दिन भी आपका लाइव सेशन होगा नेक्स्ट वीक में मंडे को, दैट इज ऑन 15 को आपकी लाइव सेशन होगा आपका,
ठीक है, मंडे को उस दिन आप मुझसे पूछ सकते हो। सो सेलुलोज जो है वो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में या आपके कार्निवोर्स में, लुक एट, इनके बॉडी में कार्निवोर्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो ये जो काम है ये सिर्फ काउज ही कर सकते हैं, ठीक है। यही जो है इन्हीं की बॉडी इस तरीके की होती है कि ये पूरी तरीके, ये जो कर्ड है, ये जो आपका डाइजेशन है, सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है ग्रास में, वो उसको डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बच्चा, लास्ट टॉपिक है आपका फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा यू कैन सी हियर बच्चा, अमीबा में आपके फॉल्स फीट होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। फॉल्स फीट होता है जिसको हम सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सूडोपोडिया जो है बच्चा वो आपका फॉल्स फीट होता है। ये जो है इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, उसको चलने में भी, और उसके साथ साथ उसको खाना लेने में भी बॉडी का, ठीक है। इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है, वेरी सिंपल एनिमल एंड सिंगल सेल्ड है, इसके अंदर एक ही सेल होता है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनके अंदर काफी सारे बबल्स होते हैं, यू कैन सी हियर, इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे बबल्स है इन द साइटोप्लाज्म, और वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल का मतलब होता है एक बैग लाइक, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियस है जो कि सेंटर पार्ट होता है जो पूरी एक्टिविटीज जो है उसको कंट्रोल करता है, और इसके अंदर ये वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो है दैट इज योर बैग, ठीक है। एक बैग होता है जो कि खाना जब अमीबा के केस में खाना जब बॉडी के अंदर जाता है तो यही जो आपका वैक्यूल है इसी के अंदर फूड स्टोर रहता है, खाना यहीं पे डाइजेशन होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जूसेस जो भी रिलीज हो रहा है वो इसी के अंदर। फिर जब खाना ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाता है इसके, और पूरे बॉडी में वो डाइजेस्टिव फूड फैल जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट होता है वापस वो वेस्ट वैक्यूल के अंदर भरता है, और वो वैक्यूल जो है वो वेस्ट को वही बाहर निकालता है। तो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या अंतर है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक ही सेल है, तो उनका बॉडी में जो डाइजेशन होगा हो सब सारी प्रोसेस रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी प्रोसेस नहीं हो रहे, बॉडी में प्रोसेस सारे हो रहे हैं, बट उनका जो प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है। हमारी तरह उनके कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, एक अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं, सो इसीलिए इनमें बहुत आसानी से ये चीज हो जाती है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सो देख सकते हो आप कि ये बहुत इजीली अपने बॉडी के पार्ट्स को ये इजीली कह सकते हो कि दिस इज योर सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट है। कैसे अपने बॉडी के कैसे ये शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो खाना यहाँ है, तो ये अपने बॉडी पार्ट को यहाँ से, जो आपका फॉल्स फीट जो होता है वो इसको क्या करेगा, उस जो आपका फॉल्स फीट है, वेट, ठीक है, जो फॉल्स फीट है उसको आगे की तरफ ऐसे इंगल्फ कर लेगा, मतलब इंगल्फ करने के लिए खाने को बॉडी के अंदर लेने के लिए वो दोनों पार्ट को, दोनों फॉल्स फीट को ऐसे उस खाने की तरफ ऐसे लेके जाएगा, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो याद रखना सूडोपोडिया आपके एग्जाम में आ सकता है। फूड ऑफ अमीबा माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि बाकी प्लांट्स और एनिमल्स जो पॉन्ड वाटर में रहते हैं इनका खाना वैसे ही है। एंड व्हेन अमीबा सेंसेस इट्स फूड, जैसे वो सेंस करता है फूड को, इट पुशेस आउट द सूडोपोडिया अराउंड द फूड, फूड पार्टिकल के चारों तरफ वो अपनी सूडोपोडिया को ऐसे कर लेता है, पुशेस इट, ताकि वो इनगल्फ मतलब खाने को बॉडी में ले सके, ठीक है। दोनों सूडोपोडिया ऐसे ज्वाइन हो जाता है ताकि खाने को ऐसे अंदर ले सके, ट्रैप कर सके। इज दिस क्लियर? और वो जाके कहा जाता है, फिर वो वैक्यूल के अंदर चला जाता है वो खाना। इज दिस क्लियर? लुक एट हियर, किस तरीके से दिस इज बच्चा मूव ऐसे करता है, सूडो आपका अमीबा इस तरीके से मूव करता है, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, लुक एट हियर, इस तरीके से मूव करता है आपका अमीबा, ठीक है। अगर आपने कभी भी अमीबा को नहीं देखा हो तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये आपका है, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्पेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल, वही वैक्यूल के द्वारा ही वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। इनके बॉडी में कोई ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स नहीं है, तो सिंपल है, वैक्यूल ही खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, उसको सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी में, और वही जो है वेस्ट प्रोडक्ट को भी कलेक्ट करके पूरे बॉडी में दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर अमीबा, हैव यू अंडरस्टूड? So this is your amoeba, guys. I hope you all have understood the whole chapter. That's all for today. And guys, this is my premier class. ठीक है, ये मेरा premier session था. So don't even think कि बस premier
हाँ तो आप नहीं देखोगे, यू शुड वॉच माई दिस सेशन ऑल्सो, ठीक है। मैं देखूंगी जाके चैट बॉक्स में कौन कौन बच्चे लाइव आए हैं, मैं उन बच्चों को डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स देने वाली हूँ ऑन मंडे, दैट इज ऑन 15th February. I'm going to give you certificates and medal to those students who are attending my class nowadays. Okay, my premier classes. Now sessions. Now guys, I want to tell you that on Monday again I will start a new chapter. So please be there on Monday because that will be going क्या, यस लाइव होने वाला है और उसके साथ साथ मेंटी क्विज और सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स के साथ. सो प्लीज कम एंड जॉइन माय दैट सेशन आल्सो. एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीमा 10 SEEMA 10 is my code. Please don't forget to use my code. यूज करना है मेरा कोड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है कि वो मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का. देन ओनली गाइज मैं आपके साथ जुड़ी रह सकती हूँ. अगर आप चाहते हैं कि सीमा मैम आप सबके साथ जुड़ी रहे, so you have to do this for me guys. So thank you so much for watching the session. I love you guys. Thank you so much. Take care. Okay, bye bye. मंडे को मिलते हैं लाइव फिर, ठीक है. सो आज है फ्राइडे, आज के बाद फिर हम मिलते हैं मंडे को लाइव सीमा मैम के साथ. ओके, बाय बाय गाइस. बाय 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 बाय. टेक केयर टेक केयर टेक केयर.